In the previous lecture, we have studied about the parameters of the motion, what is distance, what is displacement, what is speed, velocity, acceleration, deceleration, types of speed, types of acceleration, all these things we have studied earlier. Number one. Number two, we have studied about the graphical representation of a motion. We have discussed several graphs, position time graph, xt graph, second is speed time graph, and we know how to calculate the acceleration through Vt graph and speed through xt graph. And now we are going to discuss the equations of motion by graphical method. What is equations? Equation is nothing but the relation between the different parameters of the mechanics. Now mechanics में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स डिस्कस किए हमने देखिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, then if velocity changes at a uniform rate, then a uniform acceleration a, then next is the distance traveled in a time t. So basically these are the 5 parameters with us, and during these 5 parameters now we have to establish the relation among any 4 out of the 5 parameters, and these are called equations of motion. तो सबसे पहले देखिए इसकी आउटलाइन बनानी पड़ती है, हमें एक मोशन कंसीडर करना पड़ेगा. Let us consider basically these are 3 equations. 3 equations are there. 3 equations. Let us consider a body which starts with initial velocity u, which changes to v after time t with uniform acceleration a. ये हमने कंडीशन मानी. क्या कंडीशन मानी? इनिशियल वेलोसिटी थी u, जो चेंज होकर कितनी हो गई v, कितने टाइम में चेंज हो जाएगी t, और कितना एक्सेलरेशन होगा? द एक्सेलरेशन इज a. सो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ? प्लॉट इट्स vt ग्राफ. Now on this axis we have time, on this axis we have velocity. Oh, suppose this is x and this is y. So the body will start from here. Let us say this is initial velocity u. If body starts from rest, then u will become 0. The graph will start from this point, origin. Now it starts from this point. And since it is the case of uniform acceleration, then we know the velocity changes from u to v. This time is t, this is a time t, this is velocity, and if it is velocity and it is time, say it is time t, and now let me take this point, this velocity changes by v. So velocity changes from u to v. On which axis? On velocity axis. Time changes from 0 to t. On which axis? X-axis. With uniform acceleration this. So this line, suppose this point is a and this point is b. The line AB represents the VT graph. So what is this VT graph? हमने इसका VT ग्राफ बनाया और ये VT ग्राफ बन गया हमने. अब VT ग्राफ से हम क्या निकालेंगे? हमें इक्वेशंस बनानी है. अब हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम VT ग्राफ. अच्छा बताइए हमने क्या निकालना सिखाया था इस वाले ग्राफ से? VT ग्राफ से 2 बातें सिखाई थी हमने एक तो इससे क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन. और क्या फाइंड कर सकते हैं हम? डिस्टेंस. हम देखिए दोनों काम करने की कोशिश करेंगे. ये यहां तक समझ आ गया सबको? VT ग्राफ हमने कैसे बनाया? व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन? बिकॉज इट हैज इनिशियल वेलोसिटी u. अगर हम 0 लेते इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट होता. अगर ये कोई डेफिनेट वैल्यू है तो हम यहां से ले रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ अगर कोई जर्नी में कोई बॉडी आपके सामने से गुजर रही है, जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जब हमने t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया तो कितना हो गया? v हो गया है. तो ये कंटिन्यूएशन में मोशन है, उसकी वजह से आपने लिया है यहाँ पर. अब देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें? फ्रॉम VT ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ. व्हाट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ? बेसिकली हम एक्सीलरेशन निकालना चाहते थे, और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन. विच ग्राफ लाइन? AB. और इस स्लोप को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं. अगर ये एंगल थीटा लोगे टेन थीटा, सपोज AB, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, एंड सपोज दिस पॉइंट इज E. सो व्हाट इज टेन थीटा? BC अपॉन दिस AC. It will become BC upon AC. And what is this BC? BC is equal to BD minus CD. That is equal to BD minus CD
divided by, and this AC becomes equal to OD, and what is this BD? This BD equal to V, and this CD equal to U, that will be V minus U upon T, or this is A into T equal to V minus U, or V is equal to U plus AT. So this is first equation of motion which we have derived by the graphical method. इसको हमने graphical method से हमने solve किया है, ग्राफिकल मेथड से हम निकाल रहे हैं। अब हम इसी को दूसरे एक तरीके से लेंगे। दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ कम टू सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गए, हमने क्या माना, कोई कंडीशन ली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वीटी ग्राफ बनाया। वीटी ग्राफ से एक पैरामीटर हमने फाइंड किया। कौन सा पैरामीटर फाइंड किया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कैसे पता लगेगा? ये जो ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स दिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इसको हमने अप्लाई किया और पहली इक्वेशन बन गई, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो क्या सीखा था बताइए इसी फॉर्मूले से? डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या सीखा था? डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रीजन बिलो द ग्राफ लाइन। और ग्राफ लाइन कौन से वाली? एबी। एबी से नीचे का जब आप रीजन लेंगे तो ये ट्राइंगल आएगा, और ये क्या आएगा? इसमें रेक्टेंगल आएगा। दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, विथ रीजन ओ ए बी डी ओ ए बी डी ओ ए, पूरा रीजन आ गया। देखो उसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल? ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? ए बी सी। दिस रेक्टेंगल एंड दिस ट्राइंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल? दिस इज ओ ए इंटू ओ डी प्लस दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? ए सी, and what is height? BC, that is equal to U. What is OA? OA is U into T plus half AC into BC. What is AC? AC equal to OD, और OD किसके इक्वल है? T के इक्वल है, मल्टीप्लाई है। What is BC? What is this BC? Earlier we have derived BC. किसके इक्वल था BC? BD minus CD. इसको हमें लिखना पड़ेगा, और किसके इक्वल आया था? V minus U के इक्वल आया था। And this BC minus BD is equal to A into OD आया था। So what is this? This BC is equal to BD minus CD, and in next step UT plus half T. This BD minus CD is equal to OD into A, that is equal to A into OD, and what is OD? That is equal to T. So T into T half बन जाएगा, और S is equal to UT plus half A T square. This is the formula. Second equation क्या किया? OD की जगह भी क्या लिख दिया हमने? T रख दिया है। तो यहां हमने किसको चेंज किया? BC को चेंज किया। किसमें चेंज किया? BC को हमने बनाया BD माइनस CD, और ये किसके इक्वल था? BD माइनस CD। कौन सी इक्वेशन से रखा हमने? यहां से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस स्टेप वी हैव टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने चेंज किया। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कम टू थर्ड इक्वेशन। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है। चलिए थर्ड इक्वेशन यहां डेराइव कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन, वन मोर मेथड इज देयर। विच मेथड भी है? एक मेथड है डिस्टेंस निकालने का। बताओ ये शेप क्या कहलाती है? हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। इज इट नॉट ए ट्रेपीजियम? यस, ये ट्रेपीजियम बनता है। इसको अगर ट्रेपीजियम बनते हैं तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड इन दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, S is equal to area of trapezium. Which trapezium? That is O A B D O. This one. This is it. It is trapezium. And what is the formula of area of trapezium? It is half sum of the parallel sides. Which side? OA plus BD multiplied by perpendicular distance between them. This is AC. And what is this AC? If you will take this AC from here, AC is equal to, what is this? BC upon A. From this equation, AC is equal to BC upon A. So that will be half OA plus, what is BD? OA plus BD. BD यहाँ से ले सकते हैं आप, OE लिख सकते हैं BD को, OE. And I'm writing AC. Again I'm telling you, what is AC? AC is BC upon A. That is BC
divided by A is equal to 1 by 2. What is OA? OA is U plus what is OE? OE कितना है बच्चों? V. U plus V. And what is BC from here? BC is equal to BD minus CD, and BD minus CBC means V minus C. B minus. What is BC? BC BD minus CD. BD किसके इक्वल है? V. ये कितना है? U. तो V minus U. देखिए ये डिस्टेंस भी U हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। और यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे 1 by 2 V square minus U square upon A obviously here upon A, and rearrange the terms. ये S है यहाँ पर, V square is equal to U square plus 2AS. And what is this? This is equation number 3rd. So this is equation first, this is second, and this is third. Let's try to understand again. This equation consists of V, U, A and T. कितने पैरामीटर्स हैं? V, U, A and T. S नहीं है, तो जिसमें डिस्टेंस नहीं निकालना है उसमें हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। Whether distance is not given, तब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इस वाले फॉर्मूले को देखें, S, U, A and T, S, U, A and T, V नहीं है इसमें से, तब हम ये इक्वेशन लगाएंगे। और अगर टाइम नहीं गिवन है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V, U, A and S. So all these three equations are called equations of motion. Okay, समझ आ गया होगा सबको? ये 9th क्लास में भी पढ़ते थे, यहाँ थोड़ा सा हमने इसको और दोबारा से एक तरह रिवाइज ही किया है। अब देखिए इसी में हम थोड़ा सा एक और मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन tth टाइम। बेसिकली फंडामेंटल इक्वेशन तो 3 ही है हमारी, और हम इसमें आगे इसका एप्लीकेशन ले रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन tth टाइम, क्या मतलब है tth टाइम का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth टाइम। देखिए आगे हमने इक्वेशन बनाई है, हमने ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इट द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। टाइम t का मतलब जैसे 10 सेकंड में निकालना है, 10 मिनट में निकालना है, 10 आवर्स में निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। लेकिन आपको निकालना है हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल इन 10th सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल इन 9th सेकंड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द बॉडी, देन व्हाट कैन वी डू? अगर हमें ये फॉर्मूला निकालना है उसे कहते हैं tth टाइम। सो यहां से बच्चा हो जाएगा STH is equal to ST minus ST minus 1। अब कैसे आया ST minus 1? देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, UT प्लस हाफ A T स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम T। मान लीजिए आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स। 6 का मतलब T की वैल्यू कितनी होगी? 6। ओके, और अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकेंड, 6 में इन 6 सेकेंड, और अगले में ले रहे हैं इन 6th सेकंड। तो 6 सेकंड कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम 6 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, और S6 में से S5 को क्या करेंगे? माइनस। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो कौन से वाला आ जाएगा? दैट इज इन 6th सेकंड। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, सपोज हमें 9th सेकंड में चाहिए 9th। अब 9th सेकंड कौन से वाला है? 9 के 8 के बाद कौन सा आता है? 9 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड, फिर निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड, और 9 में से 8 को क्या करेंगे? माइनस। तो 8 के बाद जो 9 सेकंड स्टार्ट हुआ वो आएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। जब हम इसको 9 में से 8 को माइनस कर रहे हैं, 6 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ t में से किसको माइनस करेंगे? t minus 1, एंड द फॉर्मूला बिकम्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस u। t की जगह रखेंगे t minus 1 प्लस हाफ a t minus 1 होल स्क्वायर, एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस u अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हाफ at स्क्वायर माइनस दिस माइनस माइनस प्लस u, इट विल बिकम माइनस a, और इट विल बिकम, यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो दो हिस्सों में तोड़ लीजिए इसको, at स्क्वायर कर लेते हैं, और यहीं से आपका अगर हम हाफ प्लस ले रहे हैं हाफ a, देन इट विल बिकम 2t माइनस 1। अगर माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ हाफ at स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बिकम u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, एंड दिस इज st। सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक में ये वाला पार्ट ले लिया अलग, एक पार्ट ये ले लिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2t माइनस 1, और ये हाफ at स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज विच इक्वेशन? समटाइम्स इट इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन।
कौन सी इक्वेशन कहते हैं? फोर्थ इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इट कैन बी यूज टू डिस्टेंस ट्रेवल इन tth टाइम। तो अगर 9 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये इक्वेशन लगेगी, और अगर 9th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? ये लगेगी। और अगर इनकी हम समरी बनाएं तो अब देखिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया पूरा इक्वेशंस का। क्या इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए पहले अब इनको अप्लाई करना सीखेंगे बच्चों, हाउ टू अप्लाई। अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ले रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड बताओ क्या बनी? हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या बनी? यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ कौन सी बनी जिसको हम एस टी कह रहे हैं? u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये कॉम्बिनेशन है फोर्थ इक्वेशन का। अगर हम एक्सीलरेशन की जगह डी एक्सीलरेशन ले लें, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो ये सब ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए विल बिकम नेगेटिव। तो जितने भी इक्वेशंस हैं सब में ए को नेगेटिव कर देंगे तो वो इक्वेशंस किसके लिए बन जाएंगे? फॉर रिटार्डिंग मोशन और फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंड इट इज फॉर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दीज ऑल इक्वेशंस आर अप्लाइड फॉर मोशन, व्हिच मोशन? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए अलोंग द स्ट्रेट लाइन का हमने एग्जांपल लिया था ये। अब इसी को हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल डी एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन स्पीड बढ़ना, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन स्पीड कम होना। अब यहाँ वर्टिकल मोशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में दो हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मींस यहां से आपने ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। इज इट नॉट ए स्ट्रेट लाइन? यस इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या चेंज करेंगे? ये जो एक्सीलरेशन है यहाँ अब अर्थ के एक्सीलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा। इस एक्सीलरेशन को तो हम जो एक्स्ट्रा सोर्स है उससे डेवलप करते हैं, फोर्स के हेल्प से डेवलप करते हैं, और जो ग्रेविटी का फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड दिस विल बिकम h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अंडरस्टूड है? हॉरिजॉन्टल को डिस्टेंस कह देते हैं तो वर्टिकल को क्या क्या कह सकते हैं हम? हाइट कह सकते हैं। और यहां से ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और s की जगह h कर दिया आपने, और ऐसे ही हम STH को भी ले सकते थे। कितना बनेगा ये? u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। तो इसको भी h कह सकते हैं आप, HTH भी कह सकते हैं, s भी कह सकते हैं, दोनों चल जाएंगे। तो दीज आर द इक्वेशन, सेम इक्वेशंस हैं लेकिन किसमें? इन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो जितने भी प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी जिसमें हम किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे ऊपर से नीचे तक, उन सब के लिए हम ये वाली इक्वेशंस यूज करेंगे। चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ये भी तो मोशन है, यहां से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर दिया आपने, तो कौन सा वाला मोशन हुआ? अपवर्ड। ऊपर से नीचे आने का कौन सा हुआ? डाउनवर्ड। तो ऐसे केस में हमने अपवर्ड का भी केस, डाउनवर्ड का लिया, अब किसका लेंगे? अपवर्ड्स का। अब देखो हम जो नेचुरल डायरेक्शन लेते हैं बॉडी में वेलोसिटी की, अगर हम यहाँ से रिलीज करें तो बताइए बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। तो नेचुरल डायरेक्शन कौन सी हुई बॉडी की? जाने की नीचे हुई। तो नीचे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की जो वेलोसिटी हम वेक्टर के अकॉर्डिंग उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसी यूनिट में हम आगे वेक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम डायरेक्शन को चेंज करने से माइनस साइन बता देते हैं। तो व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, एंड व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स देन इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। एंड सेम फॉर हाइट, सेम फॉर विच डिस्टेंस, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाइट कह रहे हैं। ऊपर से नीचे तक हाइट पॉजिटिव और नीचे से ऊपर क्या लेंगे? नेगेटिव। अब देखिए क्या चेंज होगा, v की जगह क्या आएगा? माइनस v, u की जगह क्या आएगा? माइनस u, और g क्या आएगा? t। क्या g नेगेटिव हो सकता है? नो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, किसका? अर्थ की वजह से। क्यों नहीं होगा? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अर्थ का फोर्स हमेशा किधर है? डाउनवर्ड्स है। तो जी भी किधर होगा? डाउनवर्ड्स होगा। वेदर द बॉडी इज गोइंग अप और द बॉडी इज फॉलिंग डाउन, इन बोथ द केसेस जी विल बी कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। और अगर इसी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बिकम u माइनस gt। तो मैथमेटिकली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, but with the help of the concept this equation is correct, because this equation indicates v is negative means body thrown vertically upwards, u is negative initial velocity vertically upwards, g is vertically downwards. Okay, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। what about second equation? सेकंड इक्वेशन में h में आइए, h कैसा हो जाएगा? ऊपर की तरफ नेगेटिव, u कैसा होगा? ऊपर की तरफ नेगेटिव माइनस u t, और हाफ यहाँ क्या आएगा? gt स्क्वायर।
ए को किससे रिप्लेस किया हमने जी, फिर वही कारण है एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव। ये फंडामेंटल इक्वेशन है, या तो ये लर्न कर लो और नहीं तो उसको हम सिंपल तरीके से लिख रहे हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट डोंट गेट कंफ्यूज कि सर इसमें जी नेगेटिव हो गया और उसमें जी नेगेटिव हो गया। मैथमेटिकली माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सिंपल बनाने के लिए इक्वेशन यूज की है। आप इसको अप्लाई करना तब भी वही आंसर आएगा, इसको अप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, बिकॉज होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन, देन द इक्वेशन चेंजेस टू दिस वन। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि जी नेगेटिव है, इसमें भी जी नेगेटिव है, जबकि ये कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये राइट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है जिसमें मैथमेटिकली भी सही है और इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और v का स्क्वायर बनेगा तो माइनस v का भी पॉजिटिव आएगा, माइनस u का भी पॉजिटिव आएगा। अगला बताओ क्या आएगा, प्लस ट्वाइस g तो पॉजिटिव है और h कैसा रहेगा नेगेटिव। देखो हाइट नेगेटिव हो, माइनस v का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, माइनस u का स्क्वायर कितना बनेगा, प्लस u स्क्वायर बनेगा। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली यू कैन राइट इज t इज इक्वल टू u, और यहाँ अगर हम h लेंगे तो ये माइनस u माइनस और प्लस हाफ जी 2t माइनस 1, और इसको भी अगर चेंज करोगे एच टी इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देना हाफ जी 2t माइनस 1। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप देखिए, अगर सही फिजिक्स पढ़नी है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दिस एंड दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस वन, ये इक्वेशन। और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन का रिप्लेसमेंट ये है, इस वाली इक्वेशन का रिप्लेसमेंट ये होगा, इस इक्वेशन का रिप्लेसमेंट इसका ये है, और लास्ट वाले का ये रिप्लेसमेंट है। मैथमेटिकली सबसे आंसर सेम आएगा, लेकिन सही इक्वेशंस कौन से वाले ये है। तो ये हमने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज नेगेटिव होती है। तो बताइए क्या नेगेटिव होती है, बताइए। ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है तो क्या v कैसा है, पॉजिटिव है। हाइट भी कैसी है, पॉजिटिव है। u भी कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। सब पॉजिटिव वाली टर्म्स है। When such same body thrown vertically upwards, क्या g नेगेटिव हो गया? नो, g तो अभी भी डाउनवर्ड है। बॉडी भले ही ऊपर जा रही है, बॉडी नॉट गोइंग अप जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय अस, राइट? दैट्स व्हाई अपवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव, अपवर्ड हाइट नेगेटिव, ओके, बट एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव वेदर द बॉडी इज गोइंग अप और डाउन। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो अर्थ का फोर्स तो फिर भी नीचे, और जब नीचे जा रही है तो अर्थ का फोर्स तब भी नीचे लगा हुआ है। सो इन ऑल द केसेस द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट्स व्हाई g इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस इज a way to apply these equations in different cases. So there is a set of 4 equations for accelerated motion, uniformly accelerated motion. There is a set of 4 equations which is from deaccelerated motion. There is a set of 4 equations for the motion vertically downwards, and again there is a set of 4 equations which can be used to apply the problems in which the bodies are thrown vertically upwards. बताइए सब कुछ समझ आया कि नहीं? सारी चीजें क्लियर हो गई। और जब दो तरह का मोशन आएगा, बॉडी नीचे से ऊपर भी जाएगी, ऊपर से नीचे भी आएगी, उस केस में हम दो को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस लेक्चर में बस इतना ही।